Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. We were doing bache chapter 16th and today we are going to discuss the very last section of this chapter, that is section 377. Very important, and pay your whole attention towards this. Section 377 talks about unnatural offenses. Okay bache? Till 376 we have done, that were also very important, and now come to this 377. Unnatural offenses क्या होता है बच्चे? Any bodily or physically intercourse against the order of nature. Okay? ऐसा intercourse which is against the nature, okay, which is against the order of the nature, that is unnatural offense. We have certain examples, that is sodomy, right? Sodomy क्या होता है बच्चे? Anal intercourse, right? Then we have homosexual intercourse, like between man and man, that are gay, and between women and women, lesbians. Then we have bestiality, that is sex between human and animal. So these are the kinds of intercourses are against the order of nature, and that's why they are known as unnatural offenses, right? They are not natural. अब बच्चे क्या है, क्वेश्चन क्या था कि सोडोमी या होमोसेक्स, राइट? सोडोमी इज एनल and your homosex is, that is sex between the same sexes if done with consent of two person. Like if there is a consent, then why law come in between these two? ओके बच्चे, क्वेश्चन ये उठता है, ठीक है अननेचुरल है, दैट्स ओके, बट इफ देर इज अ कंसेंट बिटवीन द टू पर्सन, देन वाई लॉ कम्स इन बिटवीन दैट? ओके, तो अब इससे रिलेटेड हम केस करते जाएंगे बच्चे, ध्यान से सुनना. हमारा केस जब इसकी जो इवैल्यूएशन हुई है, राइट, इस पर्टिकुलर सेक्शन की, देर आर सर्टेन सेक्शन केसेस एज वी हैव डन इन रेप, राइट? सो हेयर योर फर्स्ट केस वाज NAS Foundation versus Government of NCT of Delhi. Okay, and this was your 2009. तो ये जो केस था बच्चे, इसमें क्या था, इसमें बात हुई थी कि जो HIV एड्स होता है ना, वो सोडोमी या गे सेक्स से ज़्यादा फैलता है. तो इंडिया में ऐसे केसेस खुल के सामने नहीं आते हैं, और इंडिया में इनका सर्वे भी नहीं किया जा सकता, राइट? सर्वे नहीं किया जा सकता तो इनका इलाज भी नहीं हो सकता. दैट्स वाई 377 जो है इज वॉयलेटिव ऑफ, तो ये सब चीज़ें इस केस में बोली गई. अब बच्चे क्या बात आई कि जो हमारा सेक्शन दिस 377 है, इट्स वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड 21. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल दिए गए हैं हमें, आर्टिकल 14, 15, 21, जो 377 है, दैट अननेचुरल ऑफेंस जो डिफाइन करता है, ये इसके अगेंस्ट भी है. कैसे? आर्टिकल 21 गिव्स अस डिग्निटी, प्राइवेसी एंड हेल्थ, राइट? इफ इट गिव्स अस दिस, देन होमोसेक्सुअल्स की डिग्निटी भी हार्म हो रही है इस सेक्शन से, उनकी प्राइवेसी भी जा रही है, राइट? Article 14, 15 talks about unreasonable discrimination against homosexuals. Discrimination हो रहा है, इसकी वजह से जो homosexuals लोग हैं, राइट, वो खुल के सामने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या है, क्रिमिनल्स हैं, और तभी हमें बीमारी का पता भी नहीं लग पाता, राइट? सो दिल्ली हाई कोर्ट सेड दैट under Article 15, discrimination on the base of sex is not allowed, right? And here sex just doesn't mean biological sex, but also the sexual orientation, like, right, sexual orientation means whether you are straight, gay, lesbian, etc. तो ये बात आई, ठीक है बच्चे, इससे समझ में आया? क्योंकि HIV एड्स इससे फैलता है, फिर लोग खुल के सामने आ नहीं पाते क्योंकि 377 के अंडर वो
क्रिमिनल्स हैं और कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वो इसके वॉयलेटिव हैं, इसके अगेंस्ट हैं, राइट। Now that Article 21 also includes right to health, and Section 377 is affecting public health measures against prevention of HIV. HIV की वजह से लोग खुल के नहीं आएंगे तो उनका Article 21 हार्म हो रहा है. So Section 377 was not struck down wholly. इसलिए बच्चे जो इस 377 सेक्शन था इसको completely डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया था, बट इट वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज फार एज इट क्रिमिनलाइजेज consensual sex, right? Consensual sex is the sex that is done with the consent of adults in private. ठीक है, तो ये वहां पर इसको क्रिमिनलाइज कर दिया था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था. मीन्स if two people have the consent of doing the unnatural offense, then they would not be declared as a criminal in 377. They are having perfect right, complete right to perform their private acts. Okay, ये यहाँ पर बात हुई. अब बच्चे फिर से एक केस आया, that was सुरेश कुमार कौशल, राइट, वर्सेस नैज फाउंडेशन. ठीक है, वो अब इनके अगेंस्ट गए. ये जो केस डिक्लेयर किया गया इसके अगेंस्ट आए और ये 2013 का केस है. दिस केस ओवरटर्न द दिल्ली हाई कोर्ट नाज फाउंडेशन केस ऑफ 2009, reinstated section 377 of IPC recriminalizing anal sex. ओके, उन्होंने फिर से इसको 377 को बताया कि ये ठीक. तो इस केस की बड़ी बुराई भी हुई थी कि पब्लिक में कि ये बहुत ही रिग्रेसिव जजमेंट थी, राइट. ओके, इस केस के बाद ये भी बोला गया बच्चे कि दैट जुडिशियल इंटरवेंशन वाज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस इशू. द पार्लियामेंट शुड डिबेट एंड डिसाइड द मैटर अगेन. ओके, तो यहाँ पर इसको थोड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया. यहाँ पर फिर से बच्चे इस जो जजमेंट थी इसको रॉन्ग बताया गया और 377 को वैलिड बताया गया. समझ में आया है? सुरेश कुमार कौशल में दिस 377 वाज turned valid and they said we are not going to discuss anything in this section and it's the duty of the parliament to debate and decide the matter. फिर से बच्चे हमारा केस आया किसका? नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. 2018 का केस है बच्चे, रिसेंट. नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. दे ओवरटर्न दिस लास्ट केस, कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन डिसीजन. इस केस में द कोर्ट यूनैनिमसली डिक्लेयर्ड द लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है, उन्होंने 377 को फिर से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया. इन सोफ का कौन से पार्ट को डिक्लेयर किया? जो क्रिमिनलाइज करता है कंसेंशुअल सेक्स को भी. ठीक है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया. दे सेड इफ टू पीपल वांट टू हैव द कंसेंशुअल सेक्स बिटवीन देम देन दे आर नॉट हेल्ड क्रिमिनल्स अंडर 377, right? They can have consensual sexual conduct between two adults. So other portion of 377 relating to sex with minor like non-consensual sex acts, bestiality, ये सब remain in force, right? वो सब valid थे. तो 377 का कुछ पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल फिर से डिक्लेयर किया इस केस में. नाउ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2019 ये पास किया गया है बच्चे. ये बहुत ही अच्छी हमारी अचीवमेंट रही है इसमें. क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2019, राइट बच्चे. It is the reaction of 377 being unconstitutional. Okay, the present law only recognizes a woman as a victim of the crime and a man as the perpetrator, but this still is aimed to make the offense more gender neutral in both regards, the victim and the perpetrator. The bills aim to recognize individuals who are homosexual or belong to the transgender community can also be the victim of rape. ठीक है बच्चे, इस बिल से
एक क्या चीज़ अच्छी आने को मिली, दैट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग जो हैं दे कैन ऑल्सो गेट बिकम विक्टिम ऑफ रेप, ओके, एंड ऑल्सो दैट ओनली अ मैन कांट बी प्रिपेट्रेटर ऑफ द सेक्शुअल ऑफेंस, राइट। तो इससे क्या हुआ बच्चे, एक रिकग्निशन मिला है, किनको रिकग्निशन मिला है, ट्रांसजेंडर्स को, राइट, एक रिकग्निशन मिला। पार्लियामेंट हैज ऑल्सो पास द ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल्स 2019 में, विच हैज़ अ मेजर स्टेप, हमारा एक बहुत मेजर स्टेप रहा है टूवर्ड्स द प्रोग्रेसिवनेस ऑफ आवर कंट्री, बट एट द सेम टाइम इट मेक्स इट मोर असेंशियल द डेफिनेशन ऑफ वुमेन सेंटरिंग ऑफेंसेस। देखिए बच्चे, हमने अब ट्रांसजेंडर के केस में बिल ला दिया, ये बहुत अचीवमेंट है, बट वुमेन के केस में जो हमारे रेप लॉज हैं दे आर स्टिल वेरी नैरोअर। वी शुड मेक एफर्ट्स टू गेट देम वाइडन, टू मेक देम मोर जेंडर न्यूट्रल। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट अननेचुरल ऑफेंसेस। कंक्लूजन क्या निकला है बच्चे, कंक्लूजन हमारे जो ये अमेंडमेंट हुई है क्रिमिनल लॉ 2019 में, इसमें क्या हुआ, दैट वन पार्ट वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड द अदर स्टिल रिमेन इन फोर्स। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन सा है कि दो पर्सन, if they are adults, they can perform consensual sex after consent, ओके, दैट विल, उसमें लॉ बीच में नहीं आएगा, दो प्राइवेट लोगों के बीच में लॉ नहीं आएगा, दैट इज वैलिड डिक्लेयर्ड बाय आवर पार्लियामेंट। ऑल राइट, I hope you are now having complete idea about section 377, what was its amendment, ये कैसे हमारे step by step declare हुआ, and give a brief reading to it. Next video we are going to discuss our next chapter, that is chapter 17th. Your chapter 16 is over, very important. We have made I think 10 to 12 videos of this chapter, so pay your all attention. If you still have any doubt in any section, comment below. Till then, goodbye, thank you.